इन एनी गिवन ईयर जब आप मेंस की तैयारी करते हो तो देयर इज अ कोर लूप दैट यू नीड टू फॉलो. Why is this a loop? Because so long as you don't have content, प्रैक्टिस किस चीज़ की करोगे? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, फीडबैक किस चीज़ पे लोगे? एंड फीडबैक जब तक नहीं लोगे तो हाउ विल यू इंप्रूव द कंटेंट? क्यों? क्योंकि फीडबैक मिलेगा, यू विल अपग्रेड योर कंटेंट, and on the basis of that you will do better practice, and your feedback will further cement the whole loop. The people who secure good ranks and the people who score really well in mains are the people who have perfected this loop. They are getting good feedback, they are practicing in a structured manner, and they are upgrading their content, or they're getting the best content and integrating it with the content that they have already made. क्यों? क्योंकि देखो, स्पून फीडिंग से कुछ नहीं होता. बना बनाया सारा कंटेंट अगर आपको मिल जाएगा तो फिर वो सारा कंटेंट आपके पीडीएफ फोल्डर में पड़ा रहेगा और आप पढ़ोगे नहीं कभी उसको. This content has to be a value addition to your effort and hard work, because that is the core ingredient of everything over here. Content बनाना है, practice करनी है, feedback लेनी है, जो भी कुछ करना है, all of that is associated with your hard work. So where does all of this stand with the video's topic today? With this video, I'm going to give you a daily plan with detailed targets कि भी आज के दिन क्या करना है, कैसे करना है for the next 85-87 days till mains 2025. The idea is, with this plan, you will be able to revise all the GS subjects at least 2 times. ऑप्शनल के लिए भी टाइम मिलेगा आपको यहाँ पे, प्रैक्टिस के लिए भी बहुत टाइम मिलेगा. बट अगेन, विदाउट योर हार्ड वर्क नन ऑफ दिस इज पॉसिबल. क्यों? क्योंकि देखो, डेली प्लान, ऑल ऑफ दैट, प्लानिंग वैनिंग, एवरीथिंग इज ग्रेट, बट जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जब तक कोई चेक नहीं कर रहा है आपको कि कैसे करोगे, क्या करोगे, इट्स ऑल यूजलेस. सो कमिंग टू व्हाट द प्लान इज, this plan has been based on the idea of reverse planning. Reverse planning क्या होता है? We take the deadline. Deadline हमारी क्या है? 22 अगस्त को you have the mains paper starting, which is the essay paper. तो 18th अगस्त वाले हफ्ते से only thing that you can do is revision. वहां तक बहुत सारी चीजें आपको नहीं करनी. उससे पहले एक हफ्ता खाली रखा गया है. यहाँ पे GS का कंटेंट है, यहाँ पे ऑप्शनल का है. Now optional के लिए naturally we can't give you detailed breakdowns and targets for each and every optional because there are so many options that people have. But for GS we can, and for GS we have. So main simulation is something that you would want to do in the first week of August. Main simulation क्या idea है? Mains is a very very heavy physical burden वाला पेपर. माने कि क्या हो रहा है? First day you're giving a 3 hour का पेपर, essay, still light, बाकी दिन छुट्टी है. अगले दिन आप आओगे, 3 hour का पेपर इन द मॉर्निंग 9 to 12, 3 hour का पेपर 2 to 5 इन द आफ्टरनून. घर जाओगे, सोओगे, अगले दिन सवेरे फिर आओगे, 3 hour का पेपर 9 to 12, 3 hour का पेपर 2 to 5. 5 पेपर बैक टू बैक जब इस तरीके से देना होता है तो इट इज वेरी वेरी फिजिकली एग्जॉस्टिंग, एंड इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू गिव अ सिमुलेशन. माने कि एक बारी पहले घर पे ये चीजें करके देख लो, ताकि पेपर वाले दिन ऐसा ना हो कि you are very tired in the exam and you're not performing at your best because you did not plan for this contingency. So any good plan has a dry run. So this is your dry run. Dry run से पहले फिर GS3 and GS2 हमने रखे हैं in the month of July, and then GS1 and GS4 have been kept in the month of June. GS3 and GS2 have been kept in the month of July for the very simple reason that both of them have a large degree of overlap. इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से फंक्शन कर रही है विल बी बेस्ड ऑन द लॉज दैट आर मेड, एंड एट द सेम टाइम इंटरनल सिक्योरिटी का रिलेशन आपका इंटरनेशनल रिलेशन से भी हो रहा है आज की डेट में बिकॉज ऑफ द रीसेंट पाकिस्तान क्राइसिस दैट हैज हैपेंड, एंड एट द सेम टाइम अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स कैन बी क्रॉस यूटिलाइज्ड इन बोथ ऑफ दीज पेपर्स. सिमिलरली ethics, essay and GS1, these papers have a lot of overlaps. Why? Because Indian society के examples you can use very well in GS4. तो उस तरीके से इस प्लान को बनाया गया है. एंड डेली टारगेट्स अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दिस डेली टारगेट्स के लिए दिस प्लान is starting from the 29th of May. First thing that you're asked to do in this plan is status check. कि भाई एक बार देखो तो आपके GS के नोट्स कितने तैयार हैं, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, क्योंकि that's the most important part over here. आप कहाँ खड़े हो अभी, बाकी तैयारी कितनी होगी, कैसे होगी, will be based on where you are standing right now, and that is a very very important part of your further planning for the next 2.5 months. Optional के notes का status check है, then resource collection for GS and optional. तो इसमें naturally this plan has been made in sync with the mains focus group and the mains Excel programs that we are running. तो if you want, बहुत सारा help आपको वहाँ से भी मिल जाएगा. But again, as I've said before, spoon feeding नहीं होगी.
मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, बट मेहनत में जो फीडबैक वाला एस्पेक्ट हमने बात करी थी कि भाई कंटेंट आपको काफ़ी हद तक विल हेल्प यू आउट विद इट, फीडबैक विल हेल्प यू आउट विद इट, बट you know the practice part, the hard work, the time that goes into it, that has to come from you. So this plan has been divided into separate parts. General studies का जो aspect है यहाँ पे, this is 3 hours a day, optional 3 hours a day, half an hour to 1 hour of daily writing practice, and weekends पे या every Sunday to Sunday आपका essay practice भी है यहाँ पे. तो एवरी संडे देयर इज एसे प्रैक्टिस. जब भी इस तरीके का कोई टेस्ट है इस प्लान में या एसे प्रैक्टिस है या कुछ भी है, तो उस दिन बाकी का दिन खाली रखा गया है, बिकॉज इट्स अंडरस्टैंडेबल इफ यू आर नॉट यूज्ड टू राइटिंग एंड यू स्पेंड 2 hours राइटिंग ऑन एनी गिवन डे. एक तो पहले यू विल हैव टू रिव्यू दैट टेस्ट ऑल्सो, एंड देन इट इज टायरिंग ऑल्सो. तो वी वॉन्ट यू टू गेट यूज टू दैट रिदम ऑफ मेन्स. रिदम है मेन्स की तैयारी, तो रिदम में हमें बैठना है. नाउ व्हाट वी ट्राइड टू डू इज हमने कोशिश करी है कि 8 to 9 hours का वर्कलोड आपका डेली बेसिस पे यहाँ पे है, which includes a certain amount of current affairs का revision also. Current affairs का revision जिस भी तरीके से अभी तक आप करते आ रहे थे, I would recommend that you continue doing that. अब इस मोमेंट पे सब कुछ नया करने की जरूरत नहीं है कि भाई वहाँ से यहाँ ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया. No, whatever has worked for you so far, continue doing that. Don't suddenly switch and completely कुछ नया रिसोर्स करने की यहाँ जरूरत नहीं है. बट करंट अफेयर्स का जो एनालिसिस वाला एस्पेक्ट है, जो कंपाइलेशंस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वी विल ऑल्सो बी हेल्पिंग आउट विद दैट. तो द प्लान डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे इस तरीके से काम मिलेगा. ये GS4 का फुल लेंथ टेस्ट एंड टारगेट्स यहाँ मिलेंगे आपको, एंड आपको ब्रेक डाउन दे दिया गया है ईच एंड एवरी एस्पेक्ट का कि भाई अच्छा ये पार्ट ऑफ द सिलेबस आपको आज कवर करना है. Now, if you don't know what resources to cover this from, the mains Excel program is exactly for that. We will be providing detailed resources for each and every one of them, and providing concise material in case आप पूरी resource नहीं पढ़ना चाह रहे हो. So, coming back to core idea कि daily plan ये हमारा हो गया. Now, accountability कैसे maintain करी जाए? For those of you that are self accountable, who can hold yourself कि भाई अच्छा I want to do this, मुझे प्लान चाहिए था बस, नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट इट डेली. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. लग जाओ, प्लान मिल गया है काम पे. बट फॉर दोज ऑफ यू दैट रिक्वायर सम असिस्टेंस विद अकाउंटेबिलिटी, एज आई मेंशन्ड बिफोर, वी हैव लॉन्च्ड द मेंस एक्सेल प्रोग्राम. मेंस एक्सेल का पॉइंट यही है यहाँ पे कि वी विल हेल्प यू आउट नॉट जस्ट विद द डेली प्लान. ये प्लान के भी टारगेट्स हम आपको डेली बेसिस पे आपके कैलेंडर में या टेलीग्राम ग्रुप पे दे देंगे, बट अकाउंटेबिलिटी के लिए भी चेक इन्स रहेंगे यहाँ पे, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट प्रैक्टिस में भी देयर विल बी असिस्टेंस. फाइनली, content will also be available through mains Excel. Now all of this is fine, but आपकी जो practice है उसको भी आपको organize करना है एक तरीके से. Practice does not mean that you practice in a haphazard manner. This also has to be structured and focused practice. Structured practice का क्या मतलब है? That you need to do PYQ analysis. For this, I will be sharing a Google Sheet with you, जहाँ पे पिछले 12 to 13 years के mains के PYQs will be organized as per subject, and it will be a searchable index. तो searchable वाली जो चीज़ है, that's very very important over here, because that gives you a very good idea of किस तरीके के questions mains में आते हैं. See, irrespective of the fact that we are generally providing almost all the content that you require for mains, you still need to put in the effort to develop this insight for yourself, because जब तक ये insight आपके दिमाग में नहीं बैठती, तो देन यू विल स्टिल फील हेल्पलेस ऑन द डे ऑफ द एग्जाम, बिकॉज आपको फिर वो वही रहेगा कि अच्छा ये किया तो है बट अभी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो. तो यू विल हैव टू स्पेंड सम टाइम डूइंग दैट. एंड फाइनली, यू नीड टू गेट सम फीडबैक फ्रॉम एक्सपर्ट्स, व्हिच इज व्हाई इफ यू वांट टू जॉइन, यू कैन चेक आउट MFG एंड MFG प्लस. नाउ कमिंग टू द शीट अगर हम बात करें, तो दिस PYQ मेंस एनालिसिस शीट either you'll find in the video description over here, or you can visit upscprep.com/plans. यहाँ पे क्या हुआ है, सिलेबस को हमने इस कोड के हिसाब से ब्रेक करके दिया हुआ है. सिलेबस के कोड के हिसाब से आपको क्या देखना है कि 1 PI फॉर एग्जांपल रेफर्स टू पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री. नाउ इफ आई गो टू GS1, यहाँ पे मुझे बस फिल्टर इसको इस तरीके से करना है. आई विल क्लियर इट ऑल 1 PI, एंड व्हाट हैज हैपेंड नाउ, सिंस 2013 टू 2022 पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के ये 7 सवाल ही आए हैं. तो जब मुझे ये सारे सवाल एक साथ एक जगह पर मिल जाते हैं, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड ओके व्हाट आर द काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड. नाउ पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑब्वियसली इज नॉट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब हम देखते हैं. लेट्स लुक एट
globalization as one of the topics which is really really frequently asked. तो globalization से अगर मैं देखूं तो लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में 24 में क्वेश्चन है, 23 में क्वेश्चन है, 22 में क्वेश्चन है, 19, 18, ऑलमोस्ट एवरी ईयर देयर इज वन क्वेश्चन दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन. तो जब इस तरीके की इंसाइट्स मैं अपने प्रिपरेशन में लाता हूँ by doing this sort of an analysis, by spending some time with the kinds of questions that is asked, it becomes very very easy for me to get more marks. And this is where जो MFG Plus वाला प्रोग्राम है, where Write Unlimited का जो कोर्स है which is part of MFG Plus, तो Write Unlimited में आप ये भी कर सकते हो कि okay, I want to write पहले ग्लोबलाइजेशन के सारे आंसर्स, देन आई वांट टू राइट विमेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनके सारे आंसर्स, एंड आई वांट टू गेट देम इवैल्यूएटेड. दैट इज व्हाट MFG प्लस में राइट अनलिमिटेड अलाउज यू टू डू कि भाई explain why suicide among young women is increasing in Indian society. Now this simple and straightforward question है, but चेक करवाना है, फीडबैक लेना है, तो उसके लिए वहाँ पे कोर्स है. कोर्स नहीं भी लेते हो, इवन देन प्लीज स्पेंड टाइम विद दीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. यहाँ पे GS 1, 2, 3 एंड 4 ये सारे पेपर्स के आपको कोड के हिसाब से क्वेश्चंस मिल जाएंगे. एंड ऑब्वियसली बिकॉज दिस शीट इज visible to everybody, you will not be able to edit it, you do not have access. तो edit access के लिए all that you have to do is go to file and make a copy. Make a copy आप दबाओगे तो इस तरीके का एक ये prompt आपको आ जाएगा. यहाँ पे make a copy आप करोगे, you will be able to edit this sheet then, right? So that is what I mean when I say structured practice with PYQ analysis as the core of it. And finally, expert feedback अगर आपको चाहिए तो you can visit courses.upscprep.com. So ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे. मेंस का प्लान डेली टारगेट्स के साथ I've shared with you. Sheets will be in the video link, and all the best.